Okay guys, once again I welcome you all in my YouTube channel. So let us proceed further. In my previous video we have discussed some questions on plane scales, isn't it? Now moving further with that only, today we will discuss some more questions of scales, okay? So here it is written, construct a scale of 1.5 inches is equal to 1 foot. Okay, 1.5 inches is equal to 1 foot. RF is not given directly, but you have to calculate it from here. Scale is given 1.5 inches is equal to 1 foot. You are assuming it. Okay. Now to show inches and long enough to measure up to 4 feet. So by reading this, we can assume that there may be two units, that is inches and feet. And here it is also written inches and feet. Represent 2 feet 10 inches on it. Now it is very clear. 2 feet and 10 inches means you have to draw a scale having two units, feet and inches. Now make sure that it is not the scale of SI unit, it is of British standard units. So now that subdivision, first subdivision you have to divide it in 10 equal parts, just like we have did in previous questions. It will not be like that. Okay, you have to take the conversion unit, that is the main concept. Okay, we will see how it can be done. So here first we have to calculate the RF. So now while calculating RF, what I have said that put the largest unit in the denominator. So in foot and inches, which is largest, we know that 1 foot is equal to 12 inches, isn't it? ये सब करवाया हूँ, आपको याद होना चाहिए. पहला लेक्चर स्केल्स का देख लीजिए. 1 foot is equal to 12 inches. It means foot is larger unit. That's why I have written foot in the denominator and 1.5 inches in the numerator. Now we have to make the unit same. So always convert the largest unit into the smaller unit. So 1 foot is in 12 inches. So I have written it here 12 inches. Now the inches and inches get cancelled and your RF will become 1 by 8. So directly RF is not given in this question, but you can calculate it very easily. Okay. Now the maximum length to measure up to, it means it is maximum length 4 feet and this you have to show 2 feet 10 inches. So यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिखा है, अगर डेसिमल में लिखा होता तो 2.10 फीट लिखा होता. तो उस समय आप देखते हैं कि यहाँ पे 4 फीट है मैक्सिमम लेंथ का यूनिट फीट, और इसके पीछे भी फीट है सेम, लेकिन यहाँ तो डेसिमल में दिया नहीं है, सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 फीट 10 इंचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आगे बढ़िए. तो अब क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ ड्राइंग निकालना है. लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग, RF इनटू मैक्सिमम लेंथ, तो 1/8 इनटू 4 इज द मैक्सिमम लेंथ. बट what I have said that you have to calculate the length of drawing in centimeter only. So you have to convert this 4 feet in centimeter. We know that 1 feet is equal to 12 inches into 12 कर दिया, and we again know that 1 inch is equal to 2.54 centimeter. तो 12 के बाद 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया. 15.24 centimeter your length of drawing. Now you have to draw a line of length 15.24 centimeter. अब 24 नहीं कर पा रहे हो, 15.2 कर लो. 15.2 सेंटीमीटर का आपने लाइन ड्रॉ किया, उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितना मैक्सिमम लेंथ है, कितना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. आपको सबको आता है कैसे करना है. अब जो जीरो के इधर आप लिखेंगे, पहले डिवीजन को छोड़ के लिखेंगे 0 1 2 3. नाउ जीरो के राइट हैंड साइड में बड़ा यूनिट लिखते हैं, तो फीट और इंच में बड़ा क्या है, फीट है, यहाँ फीट लिख दिए. जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा यूनिट लिखते हैं, कौन सा छोटा है, इंचेस लिख दिए. अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, पहले डिवीजन सिंपल है, इन दोनों के बीच का कन्वर्जन. 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस. इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक, वेरी इजी. अब कैसे करते हैं आपको सबको आता है. तो इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए पहले वाले ब्लॉक को. अब क्या करना है, जो भी ये सब नहीं समझ पा रहा है वो पहले स्केल्स का सेकंड लेक्चर देखिए, नहीं तो ये आगे तीसरा लेक्चर है, समझ नहीं आएगा. तो देन आपको क्या मेजर करना है, 2 फीट 10 इंचेस. तो जीरो के इधर फीट है, यहाँ से 2 ले लो. जीरो के इधर इंच है, कितना इंच लेना है, 10. काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उठा के डायमेंशनिंग कर दिए, 2 फीट 10 इंच लिख दिए. वेरी सिंपल. ठीक है. सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF 1/60. यहाँ डायरेक्ट दे दिया RF टू रीड यार्ड्स एंड फीट. 2 यूनिट दिया हुआ है, यार्ड एंड फीट चेक भी कर लेंगे अपन. And long enough to measure up to 5 yards, maximum length दिया हुआ है. Represent 3.1 yards on it. डेसिमल के पहले 1 यूनिट, डेसिमल के बाद 1 यूनिट, मतलब टोटल कितना यूनिट है, 2 यूनिट. और 2 यूनिट कौन सा है आपको दिया हुआ है, यार्ड्स एंड फीट. क्लियर है. अब यहाँ पे 3.1 yards लिखा है, मतलब क्या लिख सकते हो उसको, 3 यार्ड एंड 1 फीट ऐसा लिख सकते हो, एक ही मतलब.
तो RF दिया हुआ है 1/60, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 5 यार्ड्स। अब लेंथ ऑफ ड्राइंग निकालना है आपको, RF into ml कन्वर्ट कर दिए 1/60 into 5, बट आपको सेंटीमीटर में लाना है। तो आपको पता है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या होता है 3 फीट, सब लिखाया हुआ है ना क्लास नंबर 1 में। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, तो मैंने यहाँ 5 के बाद into 3 कर दिया, फीट में आ गया। फिर 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, into 12 कर दिया, इंच में आ गया। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, into 2.54 कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया। तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग आ गया 7.62 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की। आपका मैक्सिमम लेंथ कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहले ब्लॉक को छोड़ के यहाँ 0 1 2 3 4 आपने लिख दिया। 0 के राइट हैंड साइड में बड़ा यूनिट लिख दिए यार्ड्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा यूनिट लिख दिए फीट। किसका किसका स्केल है, यार्ड और फीट का। बड़ा कौन सा है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, मतलब यार्ड बड़ा है, आपने इधर यार्ड लिखा इधर फीट लिखा। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है 3 का, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहले वाले ब्लॉक को 3 इक्वल पार्ट्स क्यों, देखो 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपको शो करना है 3 यार्ड्स एंड 1 फीट, तो 0 के इधर यार्ड है 3 ले लो, और 0 के साइड फीट है, तो एक 0 के बाद वाला 1 होता है, 1 ले ली। 3.1 यार्ड्स लिख दो या 3 यार्ड्स 1 फीट लिख दो, एक ही मतलब है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाइए बेटा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया, जो करना है मैं मिटा रहा हूँ इसको, है फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखिए क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF इज इक्वल टू 1/84480। ये आपको RF दिया है टू शो माइल्स एंड फरलॉन्ग्स। अभी हमको देख के समझ आ रहा है कि 2 यूनिट होगा माइल्स एंड फरलॉन्ग्स, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 माइल्स। मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, इतना शो करना है 4.3 माइल्स। पहले गिवन डेटा आप लिख लीजिए। RF आपको दिया हुआ है 1/84480 और मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 6 माइल्स। ठीक है, हमको पता है कि लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, RF into ml, तो 1/84480 into 6 माइल्स। अब हमको क्या पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है, लिख दिया। 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड होता है, लिख दिया। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, लिख दिया। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में आगे देखिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ ड्राइंग मिलेगा कितना, 11.43 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ ड्राइंग। और आपको रिप्रेजेंट कितना करना है, कितना बोला है क्वेश्चन में, 4.3 माइल्स। अब देखिए क्लियर हो गया, 2 यूनिट है, 4 डेसिमल के पहले 1 यूनिट, डेसिमल के बाद 1 यूनिट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइल्स एंड 3 फरलॉन्ग्स। आपका माइल्स एंड फरलॉन्ग्स यूनिट है, सही है एकदम, 2 यूनिट दिया हुआ है, 4 माइल्स एंड 3 फरलॉन्ग्स। मैक्सिमम लेंथ के पीछे माइल्स है, और रिप्रेजेंट जो करना है वो अगर डेसिमल में दिया है तो उसके पीछे भी वही बड़ा यूनिट होना चाहिए।
तो माइल्स और फरलॉन्ग में बड़ा कौन सा है? माइल बड़ा है। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है। तो माइल्स बड़ा है, माइल्स लिखा हुआ है, इसके पीछे भी माइल्स है, इसके पीछे भी माइल्स है, एकदम सही है। अभी तक सारा चीज सही है। अब आपको क्या करना है, जितना आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग आया है उतना लंबा आपको लाइन बनाना है। तो 11.4 सेंटीमीटर का आप लाइन बनाएंगे। ये 11.4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? जितना मैक्सिमम लेंथ है। कितना है? 6। तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है? यार खींचे, 6 टुकड़ा काटोगे, 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाले को आखिरी वाले से जोड़ोगे, फिर उसके पैरेलली बनाते जाओगे। मिनीडॉप्टर से बनाना है आपको, है ना? तो देखो आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब 0 के इधर क्या होता है? बड़ा यूनिट। तो बड़ा कौन सा है आपका यहाँ पे? माइल्स बड़ा है। यहाँ आप लिखेंगे क्या? लिखने का तरीका सब ऐसे दोनों लाइंस को टच करते हुए लिखना है ना। ये हो गया माइल्स। और 0 के इधर क्या होता है? छोटा यूनिट। कौन सा छोटा है यहाँ पे? फरलॉन्ग। तो यहाँ लिखेंगे फरलॉन्ग। तो माइल्स और फरलॉन्ग हो गया। और यहाँ लिख दीजिए आरएफ कितना है आपका? कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 1:844 80। ये हो गया आपका। अब क्या करना है? माइल्स इसको कैसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे? आपको पता है इन दोनों यूनिट्स का कन्वर्जन। तो 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है। तो इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे? 8 इक्वल पार्ट्स। तो फिर वैसे एक्यूट एंगल बना लो, आर्क काट लो 8 को, लास्ट वाले को यहां से जोड़ दो, फिर उसके पैरेलल बाकी सबको बना दो। ठीक है, तो देखिए 8 इक्वल पार्ट्स हो गए डिवाइड। आपको इसको रेक्टेंगल बना के स्केल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब आपको शो कितना करना है? 4 माइल्स एंड 3 फरलॉन्ग्स। तो 0 के इधर माइल्स है, तो ये आपका 4 माइल्स आ गया। और 0 के इधर फरलॉन्ग है, 3 देखना है आपको। तो ये 1, ये 2, ये 3 उठा के यहाँ पे आपको डायमेंशनिंग कर देना है। 4.3 माइल्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लाइक दिस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तब तक बनाइए जल्दी, है ना? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कितना सिंपल। देखिए आपको आर डायरेक्ट दे दिया है 1/5 और मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है कितना? टू रीड अप टू 1 मीटर। ठीक है, लेकिन आपका देखो कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:5 टू शो डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो आपको दो यूनिट क्या दिया हुआ है? डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको जो शो करना है वो कितना है? 7.6 डेसीमीटर। तो अब देखो डेसिमल के पहले एक यूनिट, डेसिमल के बाद एक यूनिट, मतलब 2 यूनिट का स्केल है। और 2 यूनिट कौन सा होगा? आपको दिया हुआ है डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब क्या है? 7 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। बड़ा यूनिट क्या है? डेसीमीटर। तो मैंने क्या बताया था? आपको चेक करना है कि जो डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है उसके पीछे बड़ा यूनिट होना चाहिए। है डेसीमीटर है। मैक्सिमम में उनके पीछे बड़ा यूनिट होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये मीटर है। मीटर का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे, डेसीमीटर और सेंटीमीटर का स्केल है। तो कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। लिख दीजिए, हो गया डेसीमीटर का। अब देखिए यहाँ भी डेसीमीटर है, यहाँ भी डेसीमीटर है, बड़ा यूनिट जो है वो डेसीमीटर है। अब सही हो गया। अब आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ ड्राइंग निकालना है। क्या होता है वो? आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ।
RF कितना है 1/5 और मैक्सिमम लेंथ कितना है आपका 10 डेसीमीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 8/10 कर दो, ये आ गया सेंटीमीटर में। तो आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग आ गया 20 सेंटीमीटर। अब जैसे ही लेंथ ऑफ ड्राइंग आया आपको पता है क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना मैक्सिमम लेंथ है। कितना मैक्सिमम लेंथ 10। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स आप कर लेना, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इक्वल नहीं हुआ है ना, तो आप इसको इक्वल पार्ट्स करेंगे, आपको तरीका पता है कैसे करते हैं। तो आप लिखेंगे इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या हो गया, 0 के इधर आपको लिखना है बड़ा यूनिट। कौन सा बड़ा यूनिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे डेसीमीटर। और 0 के इधर छोटा यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, आप पूरा लिखोगे। अब डेसीमीटर और सेंटीमीटर है, मतलब मीटर आ गया लास्ट में। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहला डिवीजन जो है कितने पार्ट्स में होगा, 10 पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए इसको, ये आपका स्केल कंप्लीट। कितना सिंपल है देखिए स्केल। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो हर क्वेश्चन को देखिए वैसे ही आपको क्रैक करना है। एक बार बस कॉन्सेप्ट समझने का देखिए। अब मैं वो नीचे एंगल वगैरह यहाँ नहीं बनाया हूँ, आपको पता है कैसे करते हैं ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रोसीजर। और नहीं पता है तो मेरा पहले वीडियो को देखिए। तो ये आपका स्केल कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे शो करना है। कितना शो करने बोला है, 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि 0 के इधर डेसीमीटर है तो यहाँ से मैं 7 ले लूंगा, और 0 के इस साइड क्या है, सेंटीमीटर है, 6 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाली लाइन। यहाँ पे डायमेंशन करके आप लिखोगे 7.6 डेसीमीटर। क्लियर। यहाँ पे RF भी लिखना पड़ेगा, कितना दिया हुआ है 1:5। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को हल्का सा घुमाएगा। यहाँ पे 1 मीटर लिख दिया था, ये देख के आप गलत कर दोगे क्वेश्चन। अगर आप 1 मीटर लेके सॉल्व कर दिए गलत होगा। आपको पता है कि यूनिट सेम होना चाहिए और बड़ी यूनिट होनी चाहिए हमेशा पीछे। तो आपको पता है कि आपका स्केल डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में है, तो दोनों में बड़ा कौन सा होता है, डेसीमीटर बड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हर चीज के पीछे डेसीमीटर लिखा होना चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ के पीछे आपका मीटर लिखा था, तो आप कन्वर्ट कर दिए, 10 डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर में आ गया। अब आपको इसको नहीं देखना, आपको इसको देख के सॉल्व करना। 10 डेसीमीटर हो गया। आपका मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर है बोल के भूल जाओ, नहीं है। आपका मैक्सिमम लेंथ कितना है, 10 डेसीमीटर है, उसको लेके सॉल्व करिए। ठीक है, तो ऐसा बनता है क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, एक दो क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, फिर डायगोनल स्केल चालू करेंगे। ओके, तब तक ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।